speak when you think that your words are better than your silence. So with this thought, I, Surbhi Sachdeva, going to start with the new topic of the day, and that is the direct and indirect speech. So let's get started. So first of all, let us try to understand what is direct speech. When we report the exact words of the speaker and write them within inverted commas, it is said to be indirect speech. जब भी हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं, एज इट इज़ उसके वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, और इन रिटर्न हम जब भी उस स्पीकर के वर्ड्स को लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो सारे जो उसके वर्ड्स हैं या उसकी जो स्पीच है स्पीकर की, दैट इज़ इन डायरेक्ट स्पीच. एज वी हैव द एग्जाम्पल ओवर हियर, Neha said Roger Federer has won the match against Rafael Nadal. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेहा ने कहा, क्या कहा, क्या उसके वर्ड्स हैं एग्जैक्टली? रोजर फेडरर हैज़ वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल. तो यहाँ पे रोजर फेडरर से लेकर राफेल नडाल तक जो वर्ड्स हैं नेहा के, that we can say are in direct speech. So what next? Let's see. Now let us try to understand what is indirect speech. In reported or indirect speech, students, I want to tell you कि हम indirect speech को reported speech भी बोल सकते हैं. So in reported or indirect speech, we do not report the exact words of the speaker but convey the substance or meaning of a person's speech. Reported या indirect speech में हम क्या करते हैं? हम उस पर्सन के यानी कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके सब्सटेंस यानी कि निचोड़ की, सार की या उसके मीनिंग की बात करते हैं कि उस स्पीकर के कहने का मतलब क्या था. ठीक है, तो लाइक वी हैव एग्जाम्पल ओवर हियर जो हमने पीछे की थी रोजर फेडरर वाली, नेहा वाली, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आंसर बनेगा? नेहा सेड दैट रोजर फेडरर हैड वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब हमने दैट को लगाकर और नेहा के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं एग्जैक्टली हमने उनको वैसे का वैसे नहीं लिखा, रादर हमने क्या किया, उसका सब्सटेंस और मीनिंग बताया कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ नेहा. So Neha said that Roger Federer had won the match against Rafael Nadal. So we can say that in indirect speech or reported speech, we talk about the meaning or substance of the words of the speaker, not of the actual words of the speaker. Hope you have understood what I am trying to say and what I am trying to explain to you. So what next, students? Let's see. See, what is reporting verb, direct speech and reported speech और indirect speech? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में आप जान लें तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच हम किसको कहते हैं. See here, Neha said, Roger Federer has won the match against Rafael Nadal. तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला वर्ड है दैट इज सेड, दैट इज द वर्ब. सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. रोजर फेडरर हैज वन से लेकर राफेल नडाल तक क्या है? डायरेक्ट स्पीच है.
और इसी को अगर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, व्हाट वुड वी से? नेहा सेड दैट रोजर फेडरर हैड वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल। तो यहाँ पर नेहा सेड से लेकर राफेल नडाल तक हमने जो स्पीच चेंज करी है उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। सो व्हाट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स सी। So now we will try to understand change of persons. हमने persons को कैसे change करना है while changing the direct speech into indirect speech. See, first person. Just remember that where are we talking about the first person? We are talking about the first person after the inverted commas begin. Okay, so first person changes according to the subject. Where is the subject? Before the inverted commas. Second person changes according to the object. Second person after the inverted commas changes according to the object which is before the inverted commas. And third person, which is after the inverted commas begin, it has no change at all. It doesn't change. So basically, what the formula becomes? 1, 2, 3, SON means to say first person changes according to subject, second person changes according to object, and third person no change. So now I will try to make you understand about the change of present tense in reported or indirect speech. So first of all students, I want to say कि हर तरह के टेंस को किस अनदर टेंस में चेंज करना है while changing the reporting speech while changing the direct speech into indirect speech, that will be told to you according to the videos, according to the sessions which you will attend online, and according to the videos which I will make in future. But for today only, we will discuss the present tense. We will discuss the present tense only today. Okay. So let's see कि हमने present tense को, अगर हमें present tense जो है वो direct speech में मिलता है तो उसको indirect speech में हमने कैसे चेंज करना है. जब भी हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज होगा. So if we find simple present tense in the direct speech, then while changing it into indirect speech, we will change it into simple past tense. Next, if we find present continuous tense in the direct speech, then while changing it into the indirect speech, we will have to change it into the past continuous tense. Further, if we find present perfect tense in the direct speech, then we will have to change it into the past perfect tense if we are going to change it into the indirect speech. Then, if we are having present perfect continuous tense, if we are having present perfect continuous tense in the direct speech, then it will be changed into past perfect continuous tense when we will change it into indirect speech, when we will change the direct speech into indirect speech. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि टेंसेस की नॉलेज जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए हमने सबसे पहले जो है नाउन किए, प्रनाउन किए और धीरे धीरे करके हमने टेंसेस के ऊपर जो है एम्फेसाइज किया. सो
टेंसेस के बिना ना तो आप वॉइस कर सकते हैं और ना ही आप नरेशन कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस यू कैनॉट do voice, the active and passive voice, and you cannot do the narration, that is the direct and indirect speech. So if you are somewhere lacking, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा टेंसेस के बारे में और नॉलेज लें और साथ साथ जो है इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज करें ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह से जो है सेंटेंसेस को चेंज करना है. एज इट कम्स टू मी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक दिस टॉपिक अंडरस्टैंडेबल टू यू. सो स्टूडेंट्स, व्हाट नेक्स्ट? लेट्स सी सम रिलेटेड एग्जाम्पल्स. जो हमने अभी रूल्स किए प्रेजेंट टेंस को चेंज करने के लिए, हमने डायरेक्ट स्पीच को जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, एंड वेन एवर वी फाइंड द प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्या हैं? सी, ही सेड शी गोज टू द मार्केट. तो हमने क्या किया अभी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में. सी हियर, ही सेड दैट शी वेंट टू द मार्केट. अब देखिए, गोज शी के साथ, ठीक है, साथ साथ आपको पर्सन्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. अब देखिए, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो है कौन सा पर्सन है? शी, एंड दैट इज द थर्ड पर्सन, मीन्स टू से नो चेंज, राइट? सो हियर वी हैव द टेंस दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? गोज की, दैट विल बी वेंट, राइट? सो ही सेड दैट शी वेंट टू द मार्केट, एज सिंपल एज दैट. So what the second sentence says? Let's see. He said, I am going to school. So here you can see that after inverted commas we are having the first person, right? We are having the first person, that is I. And we are having a present continuous tense. So yes, you are right. We are going to change it into past continuous tense. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमने इसको चेंज अप किया कैसे है, बिकॉज हेयर यू आर हैविंग ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द 3 एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारे की सारी जो है प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड और एक्सरसाइज मिलेगी जिसको कि आपको घर पे ट्राई करना है. यू हैव टू ट्राई इट एट होम, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस भी करेंगे, ठीक है. फिलहाल के लिए सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. ही सेड दैट. अब ही हमने यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ पे तो आई है, तो यहाँ पे ही कैसे आया? तो हमने किया है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो फर्स्ट पर्सन आई है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है. सो आई विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग. दैट इज वाई वी हैव रिटन ही इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट ही. नाउ द टेंस चेंज. एम गोइंग किस में चेंज हो जाएगा? वॉज गोइंग में. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. Yes, so hope you have understood that. Now the third sentence. Riya and Aman said to me, you have bothered us. Read the sentence carefully. Riya and Aman said to me, you have bothered us. So the answer becomes like Riya and Aman told me. अब हमने यहाँ पे टोल्ड क्यों लगाया? देखिए, हर चीज़ के लिए, नरेशन के हर छोटे छोटे रूल के लिए जो सेपरेट वीडियो है दैट उसको बनाना इज़ नॉट पॉसिबल.
तो इसलिए मैंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हर सेंटेंस में ऐड करने की कोशिश की है कि जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से आपको वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेड टू आ जाए सब्जेक्ट के साथ तो दैट विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड, और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। ठीक है, तो टोल्ड के साथ जब भी हम एक्टिव की बात करेंगे, अगर सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल शुरू में है और साथ में टोल्ड है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रिया एंड अमन टोल्ड मी, सेट टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। ठीक है, सो रिया एंड अमन टोल्ड मी दैट, अब यू है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, एंड दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यस, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले, दैट इज मी, राइट। तो देखिए, अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो भी पर्सन है, अगर तो वो एज अ सब्जेक्ट है, जैसे कि यू है, तो वो आप ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर तो वो सब्जेक्ट के तौर पे है, जैसे कि यू है वो एज अ सब्जेक्ट है, तो हम उसको, अब मी है तो मी के अकॉर्डिंग मी नहीं करेंगे, आई करेंगे उसको, है ना। सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। And just to make yourselves very clear about it, you will have to attend online class, to be very frank. See, बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। सो होपफुली आज मेरे कहने के बाद नेक्स्ट टाइम से आप ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक is going to be helpful for you, not only in the 8th standard but in your future also, right? So in 10th, in +2, and you are going to do graduation, whatever stream you are going to take, तो हर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ऑब्वियसली, तो आपको हेल्प ज़रूर करेगी ये चीज़ आपके फ्यूचर में। सो माई सजेशन टू यू वुड बी that you should attend the online class also, so that these things should become more clear to you, right? तो यहाँ पे you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, और मी का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, आई, और यहाँ पे जो हैव बॉदर्ड है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 becomes the प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने यहाँ पे इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। सो व्हाट वुड बी द टेंस, रिया एंड अमन टोल्ड मी दैट, सो वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू रिया एंड अमन हु आर द थर्ड पर्सन, राइट। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने अगर अस को रिया एंड अमन के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, देम कर देंगे, right? So hope students you have understood this also, and now you have an exercise for all of you which goes like this. आपको ये नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, so that आपको बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे अंडरस्टूड हो जाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास, और उसमें आपके सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सारी डिस्कस की जाएंगी। So hope to see you the next time. Thank you very much. Thank you.